Hello students, today in continuation with the electrostatics unit, one part we were completed. Now we will start the second part of this same unit of electrostatics. And in this part we will look at a few topics. First is electric potential. So today we will deal with, and second one is potential surface, and third one is capacitor, and fourth one is grouping of capacitor. These all things we will deal one by one. So today we will deal electric potential. Before I start electric potential, one thing I want to rectify. In last lecture, there was an error in this formula of charge mass ratio. If you might have seen charge mass ratio in this formula, in left side there is m is written, which is wrong one, because the mass is placed here, so from this side there will be no mass. So please you rectify the note if you have formed. The q by m is equal to 2u squared divided by ex squared into y, and these parameters were kept constant. So finally our conclusion was q by m ratio is directly proportional to y, vertical displacement. So please you rectify that. मास यहाँ पे नहीं होगा, मास आपने इसको पहले ही रीअरेंज करके लेफ्ट साइड ले आए थे. तो q by m रेशियो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y. फॉर्मूला को थोड़ा रेक्टिफाई कर लें, conclusion will remain same. Okay, so with this note, now I will start with a new topic, and it is known as electric potential. This topic is very much important to understand. What is electric potential? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में होगा, ये तो सबको पता होनी चाहिए. तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से होता है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज क्रिएटेड बाय स्टैटिक चार्ज. तो सपोज करो कि हमारे पास एक स्टैटिक चार्ज है, ये प्लस क्यू ही लेंगे, ओके, और इसके चारों बगल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और साथ साथ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी होगा. तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो हम लोग पहले ही डिफाइन कर चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट इज डिफाइंड एज फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट चार्ज. आज हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड. तो मान लो कि यहाँ से r दूरी पर एक पॉइंट P है, एंड यू आर आस्क्ड दैट व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दिस पॉइंट. मतलब आप समझ लें कि इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट हमने लिया. इलेक्ट्रिक फील्ड कौन से चार्ज के कारण? क्यू चार्ज के कारण. तो क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P. फिर हम ये पॉइंट को कहीं भी ले सकते हैं, डिपेंड्स ऑन योर विश एंड डिजायर. तो फिर क्या होता है पहले आप समझे. इसकी डेफिनेशन पहले आप नोट डाउन करें कि सपोज करो कि आपको यूनिट पॉजिटिव चार्ज लाना है. What do you mean by unit positive charge? This is a +1 coulomb charge. +1 coulomb charge को कहाँ से लाना है? इंफिनिटी से और P पॉइंट पे लाना है. This means you are bringing +1 coulomb charge from infinity to point P. So naturally you have to do work. Without work it is not possible. क्यों? क्योंकि यहाँ पे फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा. तो फोर्स ऑफ रिपल्सन के अगेंस्ट आपको काम करना पड़ेगा. So whatever work is done in this process is called electric potential at point P. Remember. तो definition क्या बना इसका? तो work done, you note down this one. Work done in carrying unit positive charge from infinity to a point P in an electric field is called electric potential at that point. Okay? Again I am repeating. Work done in carrying unit positive charge from infinity to a point in an electric field is called electric potential at that point. यानी उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है. अब इसको आप जनरलाइज नहीं कर लेना कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है यही रहेगा सभी जगह, ऐसा नहीं होता है. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉइंट टू पॉइंट वैरी करेगा. तो
अगर हम मान ले कुछ देर के लिए कि लेट Q naught is a test charge, it is brought from infinity to point P. हम 1 कूलम चार्ज को नहीं ला रहे, हम क्या ला रहे हैं? Q naught. टेस्ट चार्ज हम पहले ही बताए थे, टेस्ट चार्ज इज अ वेरी स्मॉल मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। स्मॉल मैग्नीट्यूड इसलिए लेते हैं कि क्योंकि इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वह सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड को अफेक्ट नहीं करे, यानी इसका इलेक्ट्रिक फील्ड नेग्लिजिबल हो। वी विल नॉट कंसीडर द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टेस्ट चार्ज बिकॉज दिस इज एक्सट्रीमली स्मॉल चार्ज। तो Q नॉट चार्ज को हम इन्फिनिटी से P पॉइंट पर लाए, तो Q नॉट चार्ज को इन्फिनिटी से P पॉइंट पर लाने में हमको काम करना पड़ा W इज वर्क डन। ओके, W इज वर्क डन। क्या किया आपने? Q नॉट चार्ज को आपने इन्फिनिटी से कहाँ लाया? P पॉइंट पर। व्हाट इज वर्क डन? W। Q नॉट क्या है? इट इज अ टेस्ट चार्ज। तो डेफिनेशन क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कि 1 कूलम चार्ज को इन्फिनिटी से इस पॉइंट पर लाएं तो वर्क डन क्या होगा? तो नेचुरली इफ Q नॉट चार्ज इज ब्रॉड, so what was the work done? If 1 coulomb was the charge, the work done is W by Q naught. Correct? W by Q naught. So this is work done if you carry 1 coulomb charge from infinity to point P. तो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो हुआ बाय डेफिनेशन 1 कूलम चार्ज को अगर हम इन्फिनिटी से इस पॉइंट पर लाएंगे तो ये हमारा वर्क डन हुआ। तो आप लिख सकते हो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इज इक्वल टू W अपॉन Q नॉट। ओके, W अपॉन Q नॉट। अब हम करेंगे क्या इसको? इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला से देख के हम यूनिट पहले रखें। तो यूनिट क्या होगा? तो W, दिस इज वर्क डन, Q नॉट इज अ चार्ज, तो यूनिट हो जाएगा जूल पर कूलम, या फिर इसको हम बोलते हैं और वोल्ट, कैपिटल V से भी हम डिनोट कर सकते हैं। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू W बाई Q नॉट, और W बाई Q नॉट, एंड देन अकॉर्डिंगली इसके जो यूनिट होगा जूल पर कूलम होगा और ये वोल्ट होगा। एक और चीज ध्यान देने की बात है कि चूंकि वर्क जो है स्केलर क्वांटिटी है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है इट इज डिफाइंड एज वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो ये भी स्केलर क्वांटिटी होगा। सो इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। ओके, तो अगर हमको 2-3 पोटेंशियल को ऐड करना है तो जो अलजेब्रिकली हम लोग ऐड करते हैं सिंपली ऐड करेंगे, वेक्टर ऐड नहीं करेंगे, बिकॉज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी। ओके, अब हम निकालेंगे कि हम Q नॉट चार्ज को इन्फिनिटी से P पॉइंट पर लाएंगे तो व्हाट इज वर्क डन, दैट वी हैव टू कैलकुलेट। तो एक चीज आप ध्यान दें यहाँ पर कि जो वर्क डन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो वर्क डन निकालने के लिए हम मान लेते हैं कि P पॉइंट के इर्द गिर्द एक पॉइंट लेते हैं A और एक पॉइंट लेते हैं B। ओके, इसके बीच की जो दूरी है वह है dr, छोटा दूरी हम लिए दोनों पॉइंट के इर्द गिर्द, पॉइंट A टू B। P पॉइंट कहाँ पे है? ठीक बीच में है। हम सबसे पहले स्मॉल वर्क डन निकालेंगे A से B, क्योंकि यहाँ जो फोर्स है वो वेरिएबल है, डिस्टेंस के हिसाब से फोर्स का वैल्यू चेंज होगा। पहले आपको कुछ फोर्स नहीं लगेगा, फिर धीरे धीरे फोर्स बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, और जैसे जैसे आप चार्ज के पास आएंगे तो फोर्स का वैल्यू इंक्रीज होते जाएगा। इट मीन्स व्हाट? इसका मतलब है कि जो यहाँ वर्क डन हो रहा है इट इज ड्यू टू वेरिएबल फोर्स, और वेरिएबल फोर्स का वर्क डन आपको पता होना है, पता ही होगा कि वेरिएबल फोर्स का वर्क डन हम इंटीग्रेट करके निकालते हैं। तो सबसे पहले हम स्मॉल वर्क डन निकालें
अगर हम क्यू नॉट चार्ज को ए से बी तक लाएं, तो लिखो, आपको लिखना पड़ेगा, इफ क्यू नॉट चार्ज is brought from point A to B, from point A to B, what is work done? तो वर्क डन बराबर क्या होता है ना, dw होगा, दिस स्मॉल वर्क डन इज इक्वल टू वेक्टर f डॉट वेक्टर dr. ओके, force into displacement, the vector product, scalar product या dot product of force and displacement is work done. अब आप गौर से देखें कि dr की दूरी किधर से किधर है, तो dr वेक्टर जो है वह a से b की तरफ है, ध्यान से देखें, dr वेक्टर किधर की तरफ है, a से b, और फोर्स जो यहां पे लगेगा वो किधर की तरफ लगेगा, b to a. फोर्स का डायरेक्शन किधर, देखो F जो है F लग रहा है इधर की तरफ, यस, F जो है वह इधर, क्योंकि रिपल्सिव फोर्स लगेगा तो वो, और dr जो है वो है इधर की तरफ. सो व्हाट इज एंगल बिटवीन देम, तो आप क्लियरली एंगल आपको कितना लग रहा है, 180 डिग्री. सो व्हाट इज योर वर्क डन नाउ, स्मॉल वर्क डन, तो हम लिखेंगे dw इज इक्वल टू f इंटू dr इंटू कॉस 180 डिग्री. ओके, तो कॉस 180 डिग्री कितना होता है, सबको पता होना चाहिए, दिस इज -1, दिस इज -f dr. अब हम f का वैल्यू निकालेंगे, तो f कौन सा फोर्स है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, किस किस के बीच, तो q चार्ज के बीच और q नॉट चार्ज के बीच, कितने दूरी पर, r दूरी पर. हम ये मान लेते हैं कि a से b तक जो फोर्स है उसके वैल्यू में बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं है, लगभग कांस्टेंट है. ओके, बिकॉज यू हैव टू कंसीडर दिस, देन ओनली दिस फॉर्मूला यू कैन यूज. तो हम क्या करेंगे, तो f का वैल्यू लिखें, ये बराबर क्या है, -1/4πε0, चार्ज है q, कौन से चार्ज को ला रहे हैं, क्यू नॉट चार्ज को, q इंटू क्यू नॉट डिवाइडेड बाय r स्क्वायर इंटू dr. ओके, तो दिस इज योर स्मॉल वर्क डन, नो प्रॉब्लम हियर. यहाँ तक हम लोग कर लिए. अब हम बोल रहे हैं क्या, कि नाउ ब्रिंग द चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए डिस्टेंस r फ्रॉम द चार्ज, यानी आपने कहाँ से कहाँ लाया, इन्फिनिटी से 4 से r दूरी तक. ओके, तो इसमें लोअर लिमिट क्या हो जाएगा, फ्रॉम कहाँ से है, इन्फिनिटी से, कहाँ तक है, r तक. तो हम पहले इंटीग्रेट करेंगे इसको टोटल वर्क डन निकालने के लिए. तो अब आप अगला स्टेप लिखिए, जो टोटल वर्क डन इन कैरिंग q नॉट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट P. That language also you have to write, total work done in carrying q naught charge from infinity to point P, तो व्हाट इज टोटल वर्क डन. तो आप इंटीग्रेट करो पहले दोनों साइड, तो इंटीग्रेट करके क्या मिलेगा आपको, कांस्टेंट टर्म को आप बाहर कर लो, तो dw को आप इंटीग्रेट कर दो. ओके, कांस्टेंट टर्म कौन कौन है, तो 1/4πε0 कांस्टेंट है, क्यू नॉट जो है वो भी कांस्टेंट है, और इधर आपका जो बच गया r⁻² dr, और लिमिट आप लें फ्रॉम इन्फिनिटी टू r. ओके, तो ये आपको टोटल वर्क डन हो गया. अब इसकी हम कैलकुलेशन कर लें, बहुत ईजी है. तो dw का हो जाएगा w, बाकी क्या क्या बचा आपका, q0/4πε0
इंटीग्रेट करके क्या मिलेगा, तो r -2 + 1 बाय -2 + 1 लिमिट है इंफिनिटी टू r। इट्स ओके। नाउ अब अगला स्टेप देखें, तो इसको आप रीअरेंज करके हमें बताओ क्या हो जाएगा। तो आपका जो यस वन साइन इज वी आर लूजिंग परहैप्स इज द माइनस साइन। माइनस आपको हर एक स्टेप में होगा क्योंकि पाई का जो वैल्यू है वह 1/80 डिग्री है। ओके, करेक्ट। सो नाउ व्हाट इज दैट, कैलकुलेट करें आप कितना आएगा। तो अब आपको आ गया -q/q0 सॉरी q/q0 डिवाइडेड बाय 4πε0। ये इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, -1/r इंफिनिटी टू r। ये माइनस दो माइनस हुआ तो प्लस हो जाएगा आपका। तो फिर से आपको अब हम लिमिट भी डाल सकते हैं, r के जगह अपर लिमिट पहले माइनस वैसे, ये माइनस माइनस प्लस q/q0 डिवाइडेड बाय 4πε0। अब 1/r -1/∞। So finally we are getting a formula of work done if q0 charge is brought from infinity to point P। तो अब आप देखिए क्या फॉर्मूला बना, इसको रीअरेंज करके लिखें 1/4πε0 q/q0 divided by r। So this is work done in carrying q0 charge from infinity to point P। अब फिर से वापस डेफिनेशन की ओर जाएं। तो डेफिनेशन हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ही कैलकुलेट करना है। हमने q0 चार्ज को q के इलेक्ट्रिक फील्ड में लाया, किस पॉइंट पर, P पॉइंट पर। P पॉइंट q चार्ज से कितना दूरी पे है, r दूरी पे। तो टोटल वर्क डन 1/4πε0 q/q0/r आया। अब आप चलें जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो डेफिनेशन था, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इज इक्वल टू W/q0। तो W तो आपने निकाल लिया, दिस इज योर वर्क डन W। तो W कितना है, पूरे फॉर्मूला डाल दें 1/4πε0 q/q0/r। ये किसका फॉर्मूला है, W का। फिर q0 भी डालना है डिनोमिनेटर में, तो q0 डाल दो, q0 कैंसल। सो फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज 1/4πε0 q/r। करेक्ट। सो दिस इज योर formula of electric potential due to a point charge at a point in an electric field। ये फॉर्मूला तो 1/4πε0 q/r। अब हम दो तीन चीजें आप ध्यान में रखें। सबसे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला में मिल गया, किसी भी पॉइंट चार्ज के कारण किसी पॉइंट पर यानी प्लस q चार्ज के कारण पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड का पोटेंशियल है। नेचुरली ये फॉर्मूला आपको ये बताता है, दिस इज योर V। ये फॉर्मूला ये बताता है कि जितना पास रहेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उतना ज़्यादा, क्योंकि V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। As the point P closer to the charge plus Q, the value of electric potential is more। एक तो बात ये। दूसरा कि हम q/q0 चार्ज को Q के इलेक्ट्रिक फील्ड में किसको ला रहे थे, q0 चार्ज को। तो ये ध्यान में देना आप एग्जैक्टली। अब हम एक दो प्रॉब्लम देखते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं इसको, फिर हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। लेकिन इसको पहले आप समझें, क्योंकि इट्स मच इम्पॉर्टेंट थिंग कि अगर हम q0 चार्ज को लाए Q के इलेक्ट्रिक फील्ड में, किसको लाए थे, q0 को। कहाँ से लाए थे, यहाँ से। तो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है, सॉरी वर्क डन जो है, वो बराबर होता है 1/4πε0 q/q0/r। दिस इज द फॉर्मूला, r स्क्वायर नहीं बोलना, r। अब आप देखो, मान लो यहाँ पे अगर q1 होता, यहाँ पे अगर q2 होता, तो फिर फॉर्मूला हमारा क्या चेंज होता है, 1/4πε0 q1 q2
बाई आर स्क्वायर। ओके, तो ये हुआ वर्क डन। तो अब आप एक चीज गौर से देखें कि मान लो पहले वर्क डन पर ही हम डील करें। लेट इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, ये क्या होता है? लेट यू आर गिवन ए क्यू नॉट चार्ज, इस पर एक पॉइंट है P, दूरी है Q1 से R। नाउ इवन Q2 चार्ज इज ब्राउट फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट P। ओके, तो जब हम Q2 चार्ज को यहां से यहां तक लाएंगे तो नेचुरली वर्क डन करना पड़ेगा। कितना वर्क डन होगा? तो अभी जस्ट हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे Q और Q नॉट के बीच, अभी किस किस के बीच है? Q1 और Q2 के बीच। तो W इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R। दिस इज वर्क डन। अब ये जो वर्क डन है वह Q2 चार्ज में एनर्जी के रूप में स्टोर होगा। अगर आप चार्ज को छोड़ दोगे तो वो चार्ज क्या होगा? यहां से फिर भाग जाएगा। इट मीन्स इट हैज सम एनर्जी। तो ये जो वर्क डन होता है, यही वर्क डन उस चार्ज पे एनर्जी के रूप में स्टोर रहेगा। ओके, तो दिस वर्क डन is stored as energy. So electrostatic potential energy U is equal to 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R square. Sorry. Never you write R square, it is R. ये एनर्जी हुआ इस चार्ज में स्टोर होगा, इसमें भी स्टोर होगा। इसको भी अगर आप इसको होल्ड करो, इसको छोड़ दो तो ये भाग जाएगा इंफिनिटी। करेक्ट? तो ये चार्ज दोनों में होगा। अब जिसका भी बोले फॉर्मूला वही रहेगा, चाहे Q1 का बोले या Q2 का बोले, चार्ज लेंगे। लेकिन अकेले जब ये चार्ज था तब इसमें कोई एनर्जी नहीं थी, तो ये ध्यान में रखना है। तो व्हाट इज देयर? तो Q2 चार्ज इंफिनिटी से P पॉइंट पर लाए तो वर्क डन मेरा कितना हुआ? ये, और यही वर्क डन उसमें एनर्जी के रूप में होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। अब ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो व्हाट डू मीन बाय नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी? तो नेगेटिव इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या हुआ? इसमें से कोई ना कोई एक चार्ज माइनस होगा, चाहे Q1 माइनस हो चाहे Q2 माइनस हो, कोई एक, दोनों नहीं। दोनों अगर माइनस होगा तो फिर आपका जो पोटेंशियल एनर्जी है यहाँ पे वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी हुआ, इसका मतलब हुआ रिपल्सिव फोर्स होगा। क्योंकि पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी कब होगा? जब या तो दोनों प्लस हो या दोनों माइनस हो। नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी कब होगा? जब एक प्लस हो और दूसरा माइनस हो। तो जब नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी कहीं पे दिखे तो आप ये समझ जाओ कि ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी का मतलब हुआ कि बोथ द चार्जेस आर अट्रैक्टिंग ईच अदर। ओके, अगर उसको हमको सेपरेट करना है, कितना एनर्जी से वो अट्रैक्ट है, तो इतने एनर्जी से अट्रैक्ट है। एंड इफ यू वांट टू डिसॉल्व द सिस्टम, मतलब उसको बिल्कुल दूर कर देना है, इंफिनिटी तक ले जाना है, तो कितना एनर्जी देना पड़ेगा आपको? सेम एनर्जी जितना। वो माइनस एनर्जी होगा इसलिए अट्रैक्शन, आपने प्लस एनर्जी दे देना उसको। सो यू आर फॉलोइंग? सो यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट डज द पॉजिटिव एनर्जी मीन्स। पॉजिटिव एनर्जी का मतलब हुआ फोर्स ऑफ रिपल्सन, नेगेटिव एनर्जी का मतलब क्या हुआ? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा होगा। ओके, नाउ वन मोर थिंग आई विल टेल यू। ये तो बेसिक स्टार्ट है और इसको आप ध्यान में रखें, बहुत जरूरी है इसको समझना। अब आप ध्यान से देखें कि हमने लास्ट वीक पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बताया था। इलेक्ट्रिक फील्ड E is equal to magnitude, I am writing here, 1/4 pi epsilon naught into Q by R square। पॉइंट चार्ज के पास तो ये चार्ज है प्लस Q,
और इससे r दूरी पर एक पॉइंट P है, तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इतना होता है। उसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बराबर 1/4πε0 Q/r। ओके, अगर हम E/v निकालें, डिवाइड कर दें, तो गौर से देखें, E/v anybody can tell, 1/4πε0 cancel, Q cancel, so you are left with 1/r। correct? I hope that I am right। ये बात आप ध्यान में रखना। क्या E का और V का मैग्नीट्यूड सेम हो सकता है? मैग्नीट्यूड है, क्या E और V का मैग्नीट्यूड सेम हो सकता है? बोलो यस, हो सकता है। कब? तो जब दूरी 1 मीटर हो। इफ डिस्टेंस यू आर कीपिंग, इफ r यू आर टेकिंग 1 मीटर, तो 1 मीटर एंड 1 स्क्वायर इज ऑल्सो 1। तो मैग्नीट्यूड 1 मीटर के डिस्टेंस पे क्या होगा? बराबर होगा। ओके, दोनों की मैग्नीट्यूड। नाउ आई एम प्लॉटिंग ए ग्राफ एंड यू आइडेंटिफाई। अब देखो, अगर दूरी r, यहां पे कंडीशन बना ले, इफ r is equal to 1 meter, then E is equal to V। This is the magnitude only, magnitude। If r is greater than 1 meter, अब देखो 1 से ज्यादा, मान लो 2 है, तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 1/4 हो गया, ये हो जाएगा 2। कौन बड़ा हुआ? नेचुरली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बड़ा हुआ। तो आपने बोलना E is less than V। सिमिलरली इफ r is less than 1 मीटर, इसमें कौन बड़ा होगा? तो आपने बोलना E is greater than V। सोचना बैठ करके, आई एम प्लॉटिंग ए ग्राफ, और इस ग्राफ का आंसर आप खुद पता कर लेना। ग्राफ ये है, वी आर प्लॉटिंग ए ग्राफ E और V versus distance। Your formula suggests to you that E is inversely proportional to r squared and V is inversely proportional to r। This happens for point charge I am talking। Okay, तो इसका एक ग्राफ हम प्लॉट करते हैं। ये आप देख लें, एक ग्राफ ये होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ग्राफ ही होता है, दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ओके, दिस इज ग्राफ 1 एंड दिस इज ग्राफ 2। और ये जो पॉइंट होगा जहां पे E और V बराबर होगा, ये दूरी जो होगा ये होगा 1 मीटर, क्योंकि पता है इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर दोनों के वैल्यू सेम। नाउ यू हैव टू फाइंड कि इस 1 और 2 में कौन ग्राफ E का है और कौन ग्राफ V का है। ये आप अपने बैठ करके सोचो, एंड देन यू सी इन द बुक ऑल्सो, आंसर इज गिवन कि 1 और 2 ग्राफ में कौन E का है और कौन V का है। तो एवरीथिंग अगर आप ये समझ आ गया तो you can get the answer also। Now this is one question that you think and you will get the answer। एक तो ये हुआ। दूसरा, एक और चीज आप देखो कि ये आप टेक्स्ट बुक में ही सवाल ढूंढ के बनाना। आई एम गिविंग यू हिंट कि मान लो कि आपके पास एक स्क्वायर दिया हुआ है ए, यहाँ पे Q चार्ज, यहाँ पे -2Q, यहाँ पे +Q, यहाँ पे -3Q। ओके, अब इस सिस्टम की एनर्जी निकालना है, पॉजिटिव या नेगेटिव भी आपको पता करना। तो हम कैसे निकालेंगे? हाँ, आप सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकालना है, तो सब चार्ज सबका इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो। और चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, you look at the direction and try to find out। You see in the textbook this type of question is given, you try to answer that one। अब हमको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, तो मान लेते हैं हम पॉइंट दे दें A, B, C, D। करेक्ट। अब हम क्या करेंगे, सिस्टम को आप भूल जाओ। अब ये सिस्टम कैसे बनाया गया होगा? पहले Q चार्ज को लाया गया हो, तो व्हाट इज वर्क डन? पहले सिस्टम कैसे बना? कोई भी आप पहले मान सकते हैं, इसको किसी को भी पहले मान लो। पहले इस चार्ज को लाया गया, व्हाट इज वर्क डन?
तो पहला चार्ज लाने पर यानी Q चार्ज को पॉइंट ए पे लाने में वर्क डन क्या हो जाएगा, दिस इज W1 इज 0। तो क्यों, कि वर्क डन बराबर होता है 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। बट व्हाट इज द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम एक चार्ज तो है, दूसरा तो कोई नहीं था। मतलब हम बोल रहे सिस्टम बनाया कैसे होगा, बनने से पहले की बात, स्टार्ट कैसे किया होगा। यहाँ पे पहले Q चार्ज लाया, तो पहला चार्ज लाने में वर्क डन 0 होगा। अब जब दूसरा चार्ज लाए ये, तो उससे पहले ये चार्ज मौजूद होगा, तो वर्क डन क्या होगा, आप गौर से देखिए W2। तो W2 बराबर हो जाएगा माइनस, क्योंकि ये माइनस है ये प्लस है, 1/4πε0 Q इंटू 2Q डिवाइडेड बाई A। करेक्ट। अब दो चार्ज आ गए, अब हम तीसरा चार्ज ला रहे हैं प्लस क्यू जब लाएंगे तो उससे पहले प्लस क्यू लाने से पहले दो चार्ज पहले से मौजूद है, एक Q एक -2Q। तो अब W3 आप देख लो, W3 इज फॉर प्लेसिंग प्लस क्यू चार्ज एट पॉइंट C। तो पहले इसके कारण वर्क डन देख लो, फिर इसके कारण देख लो। तो इसके कारण वर्क डन कितना होगा, -1/4πε0 Q इंटू 2Q डिवाइडेड बाई A। और इसके कारण कितना हो जाएगा, क्योंकि ये दो चार्ज पहले से मौजूद है, तो कितना हो जाएगा, प्लस 1/4πε0 Q इंटू Q डिवाइडेड बाई A√2, बिकॉज दिस डिस्टेंस इज A√2। अब लास्ट चार्ज ला रहे W4। तो W4 -3Q लाएंगे, तो इसमें 3 वर्क डन करना पड़ेगा, पहले इसके कारण, फिर इसके कारण, फिर इसके कारण। फॉलोइंग। तो ऑल 3 वर्क यू हैव टू राइट डाउन। तो ऑल 3 वर्क कितना होगा, तो 1 अब ये माइनस होगा प्लस -1/4πε0 Q इंटू 3Q डिवाइडेड बाय A। करेक्ट, ये पहला वर्क डन। दूसरा वर्क डन बताया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 1/4πε0 2Q इंटू 3Q डिवाइडेड बाय A√2। एक और वर्क डन बच गया, इसके कारण ये तो ये प्लस होगा कि माइनस होगा, क्योंकि ये माइनस है ये प्लस है। तो ये बराबर कितना हो जाएगा, देख लें, दिस इज माइनस चार्ज, दिस इज प्लस चार्ज। तो प्लस तीसरा अभी नहीं लिखे हैं, 1/4π प्लस नहीं होगा, सॉरी, इट इज माइनस प्लस माइनस, सो -1/4πε0 Q इंटू 3Q डिवाइडेड बाय A। देख लो कितना वर्क डन हुआ, 3। तो जो आखिरी चार्ज हम लाए इतना। अब सारे को जोड़ दो, और सारे को जोड़ने के बाद आप बताना कि इस सिस्टम की एनर्जी इतनी है। अगर सारे की जोड़ेंगे अलजेब्रिक सम, बिकॉज वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी, तो आपने बताना इतनी एनर्जी से ये बंधा हुआ। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कितने एनर्जी, अगर माइनस एनर्जी आया तो बंधा हुआ है, अगर प्लस एनर्जी आया तो इसका मतलब है ये अनस्टेबल है, ये खुद ही टूट जाएगा। ओके, तो माइनस एनर्जी बॉन्डिंग सिस्टम के लिए, प्लस एनर्जी रिपेलिंग से अनस्टेबल के लिए। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। तो इस तरह का सवाल है टेक्स्ट बुक में, आप ढूंढें और उसको बनाएं, and then you give me feedback. Unfortunately, you are not giving me any feedback, so I don't know what is going on and what is happening. So please you prepare any feedback is there. Now one more thing we will do here, electric potential due to an electric dipole. तो electric potential due to an electric dipole हम करें तो ये आप देख लो। तो electric potential due to an electric dipole, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये बहुत आसान है, बहुत जल्दी बने, ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ओके,
व्हाट इज दैट? तो 2 पॉइंट हम लेते हैं, एक एक्सियल पॉइंट लेंगे, एक इक्वेटोरियल पॉइंट लें। तो पहला देते हैं, ये इजी है, एट इक्वेटोरियल लाइन। इक्वेटोरियल लाइन बहुत आसान है, ये 1 मिनट में बन जाएगा आपको। दिस इज योर माइनस क्यू चार्ज, दिस वन इज प्लस क्यू चार्ज, और यू कैन कंसिडर दिस इज A, दिस इज B, दिस इज 2A, and this is your perpendicular bisector lying at a distance r। तो इस पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, बहुत आसान है। तो पहले हम इसके कारण देख लें, तो इसके कारण देख लें तो कितना आएगा बताएं? ये दूरी कितना हो जाएगा? एनीबॉडी? दिस डिस्टेंस इज A, दिस इज R, तो ये हो जाएगा R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर का रूट, दैट इज पावर हाफ। पावर हाफ, पावर हाफ का मतलब स्क्वायर रूट होता है। तो अकॉर्डिंगली हम ये कर लेंगे, हमारी दूरी भी मिल गया। तो इसके कारण कितना होगा पोटेंशियल? तो VA इज इक्वल टू, माइनस होगा या प्लस, माइनस 1/4πε0 Q बाय व्हाट इज द डिस्टेंस R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर का पावर हाफ, स्क्वायर रूट। ओके, व्हाट इज पोटेंशियल एट पॉइंट B? तो VB इज इक्वल टू, प्लस होगा कि माइनस? प्लस होगा, ये जैसे प्लस चार्ज नो, तो प्लस पोटेंशियल। तो 1 प्लस 1/4πε0 इंटू क्यूब डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, वही होगा R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर का रूट। ओके, अब आपको टोटल पोटेंशियल निकालो। तो टोटल पोटेंशियल बहुत आसान है, अब देख लें, क्योंकि ये वेक्टर तो है नहीं, क्योंकि वेक्टर के रूप में हमें स्प्लिट करें फिर ऐड करें, ये डायरेक्ट ऐड होगा। तो इसका भी लाइन आप मिला दो, ये लाइन मिला, यू विल गेट दिस वन। तो व्हाट इज V? तो देखो मैग्नीट्यूड बराबर है, एक प्लस है एक माइनस है, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो V बराबर BA प्लस VB, और ये बराबर हो जाएगा 0। यानी डाइपोल के, देखो ये प्लस है ये माइनस है, तो कैंसिल होना ही है, अलजेब्रिक सम करने हैं, तो ये बराबर हो जाएगा 0। व्हाट डू यू मीन कि डाइपोल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर, या इसको हम इक्वेटोरियल लाइन बोलते हैं, उस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं होता, इलेक्ट्रिक फील्ड होता था, उसका फॉर्मूला आप करे हो, बट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट लाइंग ऑन perpendicular bisector is 0। That's good। पोटेंशियल है, पोटेंशियल नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये ध्यान में रखना पड़ेगा, करेक्ट। और कहीं कहीं आप देखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, पोटेंशियल है, बहुत बढ़िया। तो ये नहीं सोचना कि दोनों एक साथ होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोथ हैज डिफरेंट वैल्यूज। नाउ अब हम आगे बढ़ें और इसको देखें गौर से कि ये क्या होता है। यू ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस वन। मान लो कि आपसे पूछे व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एक्सियल लाइन, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एक्सियल लाइन आप बहुत आसानी से निकाल सकते हो, ये आप करना। दिस इज योर माइनस क्यू चार्ज, दिस इज पॉइंट A, दिस पॉइंट इज B, इसके बीच का दूरी है 2A, ये है सेंटर O, और यहाँ से R दूरी पर हमने एक पॉइंट लिया P, और उस पॉइंट पर हमको पोटेंशियल निकालना है। तो बारी बारी से हम निकाले पोटेंशियल, बात समझ गए? एक डाइपोल है, दिस इज माइनस क्यू, दिस इज प्लस क्यू, AB इज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, डाइपोल लेंथ इज 2A, सेंटर से R दूरी पर हमने एक्सियल लाइन पर एक पॉइंट P लिया है, हमने पोटेंशियल निकालना है। तो पहले हमको ये बताओ VA क्या होगा? तो VA यानी निगेटिव चार्ज के कारण, तो VA बराबर होगा माइनस, बिकॉज दिस इज माइनस चार्ज, 1/4πε0 इंटू क्यू बाय व्हाट इज द डिस्टेंस। तो यहाँ चार्ज तो यहाँ पे है, और R जो है वो सेंटर से है, तो डिस्टेंस जो हो जाएगा वो हो जाएगा R प्लस A। अभी ये दूरी तो ऐड करना पड़ेगा ना चार्ज यहाँ पे। व्हाट इज VB?
यानी प्लस क्यू चार्ज के कारण पोटेंशियल। तो VB इज इक्वल टू, व्हाट इज VB, प्लस होगा कि माइनस, इट्स अ प्लस बिकॉज पॉजिटिव चार्ज, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q डिवाइडेड बाय व्हाट्स द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द चार्ज। तो चार्ज तो यहाँ पे है, R के टर्म में हम दूरी लिखेंगे, R तो सेंटर से हो गया, तो सेंटर से इतनी दूरी माइनस कर लो, तो क्या लिखना पड़ेगा, R माइनस A, करेक्ट। अब व्हाट इज V, क्योंकि ये तो वेक्टर है नहीं इसलिए आपको अलजेब्रिक सम करना पड़ेगा, सिंस वन इज प्लस अदर वन इज माइनस, so when you are given that you add this one, you will get the answer simply by algebraic sum। तो V बराबर होगा BA प्लस BB, और कैलकुलेट करके आप एक फॉर्मूला निकालें, वो फॉर्मूला आपका बनेगा, वो ये बनेगा, V इज इक्वल टू, ये आप चेक कर लेना, V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P बाय R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, ये फार्मूला बनेगा। कोई फार्मूला में A को आप ड्रॉप भी कर सकते हो, कंसिडरिंग A स्क्वायर इज मच स्मॉलर देन R स्क्वायर, सो A स्क्वायर कैन बी ड्रॉप्ड। तो V का फार्मूला होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P बाय R स्क्वायर। So this is formula. You check this one whether you are getting or not. इसको इकट्ठा करना है and you will get the answer. So thank you for today, and in next class we will discuss about electric potential, equipotential surface. It's a much important topic that you have to understand, and you read it carefully and try to get the answer. If any problem is there, last week also you are not giving feedback. Please you do feedback me, what is your problem. Thank you very much.